winter months from December to February, thousands of acres of farms in Punjab are on fire. Not because of stubble burning, but because this is the Kino season. Orchards blaze with this flaming neon citrus hanging so heavy on the branch that the tree bends low. These are sweet and sour bombs of intense juice and flavor. The Abohar Fazilka region, a small arid strip at the southern tip of Punjab, wedged between Pakistan to the west and Rajasthan to the south, is the Florida of Indian citrus. And every year from this corner of the country, farmers produce over 3,000 crore rupees worth of kinos that rule our fruit shops. Just as wheat brought prosperity to Punjab post the Green Revolution, kinos have made the farmers in southern Punjab even richer. But these riches are not the result of luck. The industrious and enterprising farmers have perfected new techniques and found new markets in far corners of the country. Yet, we are nowhere close to tapping their full potential. There's very little processing or value addition, no exports, and few in South India even know of the fruit. I'm Anisha Jain, and I'll take you on a zesty trip from Punjab to Maharashtra to explore the story of an orange opportunity. बेसिकली अबोहर किन्नू के लिए ही फेमस है और सबसे अच्छी क्वालिटी हमारे यहाँ ही उगाई जाती है। इसमें माल्टा भी है, इसकी सिस्टर प्लांट है, पर किन्नू जैसा कोई भी नहीं है। और हम ये चाहते हैं भारत के हर हिस्से में, हर घर के अंदर किन्नू को खाया जाए। ये हमने 80s में स्टार्ट किया, मेरे बर्थ से पहले। 90s में थोड़ी सी हमारे यहाँ क्या है, कॉटन का बहुत अच्छा एक सीज़न आया, तो उसकी वजह से क्या है, अभी थोड़ा सा किन्नू डिप हुआ। 2000 के बाद पानी के सोर्सेज भी बहुत अच्छे हुए, हमें वो कैनाल्स मिल गई, फ्लड इरिगेशन भी शुरू कर दिया, तो उससे हम करते करते डिपेंड आज हम 60 एकड़ पे आ गए। इसलिए अबोहर को किन्नू का कैलिफोर्निया क्या, पहले यहाँ कॉटन पे ज़्यादा था फसलों का जमाव, तो क्या है कि पेस्टिसाइड का रुझान बढ़ गया। पेस्टिसाइड ने क्या किया कि यहाँ बीमारियाँ ही पैदा की, तो यूनिवर्सिटी भी कहने लगी भी आप अत्यधिक पेस्टिसाइड मत करो। उन्होंने प्रमोट किया इसको बागवानी को, एक सीमित आय होने लगी थी नॉर्वे के अंदर, और किन्नू के आने के बाद में इसमें कम से कम 1 एकड़ के अंदर 100 क्विंटल से लेकर 500 क्विंटल तक निकल सकता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी। यहाँ क्या लैंड होल्ड बहुत अच्छा है सबके पास, 30-40 एकड़्स एवरेज हर घर के पास है यहाँ। तो उसमें से उन्होंने 80 या 60% किन्नू पे लगा रखा है, तो इसका मतलब पोटेंशियल तो है। और दूसरा क्या है, हमारे कल्चर, एक कल्चर है भी, हमारे वेडिंग्स है, कोई फंक्शन है, कोई चीज़ है, वो ज़्यादातर इसी सीज़न में होती है, जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब ये अच्छा मौसम माना जाता है। अगर ये हमें उस टाइम पैसा दे रहा है तो वो हम अपने किसी अच्छे काम में लगाएंगे। कोई मकान बनाता है, कोई गाड़ी लेता है, तो कोई शादी करता है, मतलब हर दुख सुख का ये साथी है। Every lime, lemon, orange or mosambi you eat belongs to the citrus family. All citrus fruits have 3 wild ancestors: citron, pomelo and mandarin. Everything we eat today is a hybrid of these 3, made over thousands of years by nature, farmers and scientists. In India, Nagpur orange and Kino are the most popular oranges. The Nagpur orange has rough, loose and green skin. The flesh is sweet and the flavor mild. Kino is super bright, has waxy skin and bursts with juice. Like most things in Punjab, the Kino packs a punch. If your business too is working on projects as complex as growing perishable oranges in Punjab and getting them to consumers across India in a week after harvest, many things can go wrong. Timelines can slip, bad weather may disrupt the supply chain, tasks get missed, and suddenly you're spending more time coordinating than actually ensuring the best oranges are grown and picked.
That's where the sponsor of this video, Odoo Project, can be the game changer. Odoo is an all-in-one business management software that simplifies and automates your business operations. Odoo Project is the perfect open source solution. Create different projects, invite collaborators, set milestones and deadlines. You can see the whole planning in different dashboard views. Organize everything with intuitive Kanban boards for task stages, Gantt charts for timeline and dependencies, and list view for batch changes. Collaborate with the team through emails and log notes. Set activities like calls and to-dos, all within the task to keep communication organized. Whether for a lab to farm project or executing a viral ad campaign, it boosts efficiency and teamwork massively. You can track deadlines in real time, collaborate on tasks, and navigate your project. It ensures that crucial details like performance data or client feedback never fall through the cracks. If you want to turn your big ideas into reality seamlessly, use Odoo Project for free for lifetime with the link in the description right away. जो नागपुर संतरा है वो पूरे साल लगभग अवेलेबल रहता है और जो कीनू है हमारा जो ये हमारे पास लगभग नवंबर से शुरू होता है और ये मार्च तक अवेलेबल रहता है मेनली। उसके बाद 1-2 महीना थोड़ा कोल्ड स्टोरेज में, उसके बाद अवेलेबल नहीं होता। तो संतरा को याद हमें इसलिए ज़्यादा रहते हैं कि वो पूरे साल हमको किसी मिलता है। संतरे और इसमें दोनों में क्वालिटी में भी फ़र्क है जी। उसका जूस आप देखोगे तो जूस भी इसका थिक होता है, संतरे का जूस थोड़ा पतला होता है। इसके अंदर न्यूट्रिशन वैसे ज़्यादा है, संतरे से सही कोई गुना टेस्टी होता है, फाइबर भी ज़्यादा मिलता है इससे। कीनू का टेस्ट तो लाजवाब। उतना ये संतरे के अंदर, ऑरेंज के अंदर उतना जूस नहीं है जितना कीनू के अंदर। और जैसे जैसे ठंड बढ़ती है इसकी मिठास भी बढ़ती है, उससे हमारा शुगर भी लेवल सही रहता है और विटामिन सी भी कम पूरा रहता है। किन्नू जो है किंग और विल्लो का क्रॉस है। ये HB फ्रोस्ट साइंटिस्ट थे, रिवर साइड कैलिफोर्निया में उन्होंने इसका हाइब्रिड बनाया था 1915 में, और उसके बाद ये 1935 में वैरायटी रिलीज़ हुई वहाँ से। उसके बाद 1958 में डॉक्टर JC बख्शी यहाँ से गए थे, तो वो 4 प्लांट्स लेके आए थे किन्नू के, और उससे हमने फिर 72 प्लांट्स बना के यहाँ पे अपने यहाँ इसको इवेलुएट किया और इवेलुएशन के बाद इसको रिलीज़ किया। 1970 में ये जर्नल कल्टीवेशन में आ गया और इसने काफ़ी एरिया ऑक्यूपाई कर लिया। ये 1970 में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया था, लगभग 20,000 हेक्टेयर एरिया में ये हो गया था। तो आज के दिन इस रीजन में इंक्लूडिंग गंगानगर, डबवाली और अबोर, फाजिलका डिस्ट्रिक्ट में लगभग 50-60 हज़ार हेक्टेयर एरिया के अंदर किन्नू लगता है। जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, जो सिट्रस ਨੂੰ कंपेयर करिए बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी कंपेरेबल है। इंडिया में भी हमारी प्रोडक्टिविटी सिट्रस में सबसे ज़्यादा है। इवन USA से जो साइंटिस्ट आए हैं वो भी हैरान है देख के कि किन्नू की इतनी प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है, जबकि जहाँ ये डेवलप हुआ वहाँ इसकी प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं निकलती है, और लगभग 22-23 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से इसकी प्रोडक्टिविटी है। यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं बेस्ट सूट करती हैं इसको किन्नू प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे लूज सॉइल्स हैं, लाइट सॉइल्स हैं, और टेम्परेचर और इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो इसको यहाँ के लिए बेस्ट क्रॉप बनाती हैं। I'm in a village called Abul Khurana to make Balwinder Singh Tikka. 66-year-old Tikka is known as the Kino king of this region for his innovations and exemplary output. His Kino farms have expanded from 4 acres in 1980 to 150 now. Tikka beat blood cancer in 2021 and continues to work on his farm 10 hours a day. कोई भी सिट्रस जो सीड से नहीं ग्रो होता, उसका जो पेरेंट प्लांट है उसको हम खट्टी बोलते हैं। तो ये है खट्टी जो अभी हमने लगाई। ये 3-4 महीने पहले इसका सीड डाला था। इसको हम तब तक वेट करेंगे जैसे जुलाई अगस्त तक जाके इसका साइज हुआ, पेंसिल साइज बन जाएगा, फिर ग्राफ्टिंग करें। ग्राफ्टिंग क्या है कि जैसे ये बेस है, जैसे हम लोग पिज़्ज़ा खाते हैं तो पिज़्ज़ा का बेस सेम रहता है, बट उसके ऊपर जो ऐड करेंगे तो वही पिज़्ज़ा बन जाएगा। तो इसीलिए हमारा ये बेस है सिट्रस के लिए। ये वाला देखिए, ये यहाँ से सिट्रस का प्लांट चला हुआ है, तो ये बड़ा हो गया। इसका साइज देखिए, ये पेंसिल साइज बन गया। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम रूट स्टॉक बोलते हैं। नीचे वाले को रूट स्टॉक बोलते हैं, खट्टी को।
अब जो ऊपर वाला जो ये लग रहा है इसको हम सियान बोलते हैं। तो अब ऊपर से पॉलीथीन से इसको टाई कर देंगे। ये इसमें इसका प्लास्टर हो जाएगा, जैसे अपने हड्डी को बांध देते हैं जैसे प्लास्टर होती है, ऐसे ये इसको बांध देंगे। ये सारा प्रोसीजर ये ऐसा रहता है सीड से लेके प्लांट तैयार होने तक। तो फादर साहब जो है वो रवायती खेती करते थे, जिसमें हमारे एरिया में कॉटन होती थी। कॉटन और हाड़ी में जो है गेहूं और सरसों की खेती करते थे। लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा बागवानी का शौक था शुरू से। मैंने 1980 में 4 एकड़ किन्नू और 1.5 एकड़ अंगूर से ये खेती स्टार्ट की। हमारा फ्रूट सक्सेसफुली जो 85 से चलने लग गया, तो तब तो हमारे एरिया में वाटर लेवल भी बहुत डीप था। लेकिन मेरे दिमाग में शुरू से ये रहता था कि जो किन्नू या सिट्रस है वो सैंडी सॉइल में अच्छा होता है। तो हमारी एक मजबूरी भी थी कि हमारे पास ज़्यादा जो लैंड थी वो ऊंची और सैंडी थी। मेन टाइम में ड्रिप इरीगेशन का कंसेप्ट जो पंजाब में 1994 में वो आ गया। तो उसके बाद हम लोगों ने जब देखा कि सक्सेसफुली हमारे गांव में जो हमारी ऊंची ज़मीन थी उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तब हमने जो ऊंची ही ज़मीन खरीदी तो वो ऊंचे, उनको हम टिब्बे बोलते हैं पंजाबी में। तो तब से हमारे को टिब्बों का सरदार भी कहने लग गए लोग कि ये टिब्बे लेते हैं बेकार, तो उसको फर्टाइल बना लेते हैं, तो उसमें सिट्रस रहता है। Citrus is the third most commercially important fruit in India after banana and mango. India's citrus output, worth $5 billion a year, could buy about 15 Rafale fighter jets. India is also the third largest producer of citrus behind China and Brazil. But we manage to process barely 5% of our citrus, and some 30% gets wasted between the farm and the plate. किसान अपना किन्नू जो है मार्केटिंग खुद नहीं करना चाहता। ये रीज़न उसके कई हैं। एक रीज़न तो ये है कि वो उसको ज्ञान ही नहीं है। मोस्टली फार्मर्स क्या करते हैं, बहुत एडवांस में भी बेच देते हैं, जबकि फ्रूट अभी पका भी नहीं है। एक तरह का आप जुआ खेल रहे हो। मोस्टली फार्मर्स जो है वो अपना बगीचे में फार्म पे बेच देते हैं एडवांस में, या फिर कोई जब हार्वेस्ट होना है उस टाइम भी बेचते हैं। तो वो एक प्रोसेस वो भी चल रहा है। वो ट्रेडर्स बाय कर लेते हैं, फिर वो मार्केटिंग करते हैं। पैक हाउस पे लाके उन्होंने ट्रेडर्स ने अपने पैक हाउस बनाए हुए हैं। जैसे ये मेरा पैक हाउस है, मैं अपनी मार्केटिंग खुद करने के लिए मैंने ये पैक हाउस लगाया हुआ है। अभी आज की डेट में मुश्किल से 10-12 फार्मर्स होंगे जो खुद अपनी ट्रेडिंग कर। हार्वेस्ट होने के बाद हम क्रेट में हार्वेस्ट करके लाते हैं, पैक हाउस में आ जाता है। मशीन है जो पूरा वॉश होके ड्राई होके, और फिर उसमें एक फूड ग्रेड की वैक्स है जो उसमें ऊपर वैक्स ही कहा जाता है। वो वैक्स एक्चुअली वैक्स नहीं है, और फूड ग्रेड आइटम है जो उसकी कोटिंग करती है, जिससे किन्नू की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। 7 डेज़ की ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है, साउथ तक जाता है। और इसकी वैसे शेल्फ लाइफ जो वो 3-4 डेज़ है। मार्केटिंग की प्रॉब्लम है। अभी दूर हम लोग किसान नहीं पहुंच सकता कि आप डिपेंड हो कॉन्ट्रैक्टर पे। आप डायरेक्ट, आपके पास वो थॉट्स नहीं है भी आप इतना दूर जाके बेचो, उसमें पैसों की प्रॉब्लम आती है। कई बार मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते, कई बार इतनी दूर लेके जाते हैं वो ख़राब भी हो जाता है। तो इसीलिए मतलब किसान सोचता है भी यहीं का यहीं हम आराम से अपने खेत से ही दे दें। This has been a good year for quinoa farmers in Punjab. They can easily make a profit of rupees 5 lakh an acre. Most farmers sell to contractors who handle the harvesting. The farmer's share in the value chain ends when the fruits leave their fields. If farmers were to unite through FPCs, they could set up processing plants, cooling units, and pack houses for exports, and even create a much bigger domestic market for quinoas. मेन मुद्दा मार्केटिंग का है। तो वैसे तो उसका जैसे महाराष्ट्र में चलता है कि वो लोग सरकार से कोई हेल्प नहीं लेते हैं, वो तो कोऑपरेटिवली करते हैं सब लोग रल के। तो हमारे पंजाब में ये कमी है। मैं बड़े सालों से कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पा रहा है? इसकी वजह मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे इधर बड़े छोटे किसानों का मसला मेन, कि छोटे किसान जो है
वो बड़े किसानों के साथ नहीं लड़ते, बड़ा किसान छोटे को नहीं लड़ा के राजी। तो ये क्यों, ईगो इश्यूज? मे बी। But quinoa has a processing problem. First, it has lots of seeds and a thin peel, which makes juice extraction tricky. Second, the fruit spoils fast because of the high water content. Third, juice often turns bitter due to compounds released during processing. That's why it ends up as a table fruit. But all these problems are solvable. We are one of the largest quinoa growing regions in the country, but as such you will find there are no processing plants or facilities available in this area as well. And I think for so many years some people have tried, even the government did try, but it didn't work out, because when you process these quinoas on these large scale industrial machines, they tend to crush the seed, which makes the juice bitter. But whereas what we have found out, that if you process on small scale rural manufacturing units like ours, you can do it at a smaller scale where the seeds are not crushed in the juice, and the juice tends to remain sweeter and does not get a bitter aftertaste. Punjab quinoas may be fantastic and farmers ride the cycle of good years and bad and still make money. But with climate change, deteriorating soil health and a failure to rejuvenate orchards with new varieties, those good times may not last. Nobody seems to have a plan. If things remain business as usual, Punjab's farmers will need more prayers. सकल द्वार को छाड़ के गयो तुम्हारो द्वार बाही गहे की रात। To understand a different side of the orange story, I traveled 1500 kilometers south of Fazilka to Maharashtra. Farmers here are much poorer, owning on average just 2 acres of land. Productivity is lower, the challenges are the same, but poverty often brings the desperation to win. In Maharashtra, farmers are doing something Punjab isn't, coming together to solve their problems and compete globally. The 3 major types of citrus in India are orange, sweet lime and key lime. Oranges like Kino, Nagpur, Coorg and Khasi oranges from the northeast are mostly cable fruits. MP, Maharashtra and Punjab are the top 3 producers. हम लोग पूरा ओवरऑल मैंड्रिन का देखेंगे, नागपुर मैंड्रिन तो मोर देन 100 ईयर से ना ये वैरायटी विदर्भ और बाकी एरिया में, किनो भी ऑलमोस्ट 50 ईयर प्लस का ये वैरायटी का पूरा रिकॉर्ड है। इन्होंने फार्मर को कुछ हद तक अच्छा इनकम भी दिया है, लेकिन अभी हम लोग जो देख रहे हैं कि एक तरफ इस वैरायटी को कंपटीशन में जो बाहर से इंपोर्ट करके हमारे मार्केट में, इंडियन मार्केट में कंज्यूमर को मिल रही है, तो वो कंपेयर टू आवर नागपुर मैंड्रिन और किनो टेस्ट वाइज बेटर है, एरोमा बेटर है। कुछ इंपोर्टेड मैंड्रिन सीडलेस भी है। इंपोर्टेड अभी मैंड्रिन हम लोग देखते हैं कि 150 रुपये 200 रुपये में भी कंज्यूमर ले रहा है, और नागपुर किनो प्रोडक्ट को एक 50 रुपये 60 रुपीज़ मिलना भी चैलेंजिंग लग रहा है। जो एवरेज वैसे देखा जाए तो ग्लोबली किसी भी मैंड्रिन में अराउंड एक 15 टन पर एकड़ ये नॉर्मल यील्ड कंसिडर होता है। मतलब हमारे यहाँ वो मैंड्रिन में तो 8 टन भी अभी मिलना मुश्किल हो रहा है, कुछ फार्मर तो उतना भी नहीं कर पा रहे। तो ये देखा जाए तो यील्ड पे भी ये लॉस हो रहा है, दूसरी तरफ प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है, तीसरी तरफ रेट पे प्रेशर है। तो ओवरऑल इकोनॉमीज अभी फार्मर का कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली हिल चुका है। Vilas Shinde is one of the most important farmer leaders in India. About 20 years ago, Shinde too was a grape farmer crushed by losses and debt. In 2010, he united farmers in Nashik and founded a farmer-producer company called Sahyadri Farms. With a turnover of rupees 2,000 crore, Sahyadri is India's largest grape exporter and is run entirely by farmers. Shinde is now trying to bring the same success to Maharashtra's citrus. कि फार्मर की जो लड़ाई है वो मतलब 10 मुंह वाले रावण से लड़ने वाली लड़ाई है। या आप उन्हें 9 को सोल्यूशन निकाला और एक बचा है तो स्टिल वो तो प्रॉब्लम जिंदा है ना, प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, तो जुए जैसी हुई ना बात। आई थिंक इस तरीके का अप्रोच तो चलने वाला नहीं है। हमें पूरे इकोसिस्टम
कैसे हम लोग बनाए और उसकी पूरा कंट्रोल कैसे करें। अभी वो करने के लिए ना अकेला फार्मर तो कभी कर नहीं पाएगा। सिट्रस में अभी हम लोग वही देख रहे हैं एज अ सह्याद्री, जब से हम लोग अभी 4 साल से काम कर रहे हैं कलेक्टिव अप्रोच से, कि हमारे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, सिट्रस की प्रोड्यूसर कंपनी, जिसमें प्रोडक्शन लेवल पे पूरा कंट्रोल, उसके साथ सेंट्रल पॉइंट पे प्रोसेसिंग का, फ्रेश मार्केट का कंट्रोल, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का कंट्रोल, उसके वैल्यू एडिशन की कंट्रोल, प्लस ऑन द बैक एंड वालेटल कंट्रोल। ये जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन रहा है तो उसका इम्पैक्ट आ रहा है। मेरा नाम विनोद राउत है, डिस्ट्रिक्ट वाशिम। मैं संतरा उत्पादक काश्तकार हूँ और मेरे पास संतरे की 35 एकड़ खेती है। संतरे के खेती में हर साल यानी कि अप डाउन चलता है। यानी कि गए साल हमारा जो थे 1.5 करोड़ रुपए आमदनी आई संतरे के खेत में, लेकिन इस साल क्लाइमेट चेंज की वजह से 1 रुपये भी नहीं आया। 2020 में सह्याद्री से जुड़े हम। सह्याद्री से पहले हम जो व्यापारी लोग को संतरा बेचते थे तो उसमें क्या होता था जनरली कि कभी हमको बताया जाता था कि हमको इसमें लॉस आया, कभी बताया जाता था कि मार्केट गिर गई। और इसमें फ़ायदा एक ही है सह्याद्री से जुड़ने से कि एक पैसों की बहुत गारंटी है। अभी जो बिग रेट का माल है तो ये तो सह्याद्री से पहले हमको 1 रुपये किलो, कभी कभी वो भी नहीं देते थे, 16 रुपये मिलते। गए साल 18 रुपये किलो मिल, कभी 20 भी मिलते। यानी कि ये एक बहुत बड़ा मुनाफा हो रहा है काश्तकारों का। I've come to Nanded in Maharashtra. No oranges grow around this region, but this is the country's largest citrus processing plant. It's owned by Sahyadri Farms, the biggest farmer producer company in India. While Punjab farmers claim that their quinos are hard to process, the success of Sahyadri Farms shows that nothing is impossible. In fact, they've managed to solve for problems like the bitterness and acidity of orange juice. This plant here can process 600 tons of oranges, mossambi and lemon every day. They could even do quino, just that getting them all the way from Punjab does not make sense. टोटल कंजम्पशन में से 80% फ्रेश मार्केट में, 20% प्रोसेस में, इस तरीके का रेशो हमेशा रहेगा। प्रोसेस कब होता है? अगर फ्रेश में मार्केट ग्लड सिचुएशन बनती है, मेन हाईवे को एक बाईपास जैसे होता है ना, वैसे प्रोसेसिंग इज अ बाईपास टू द फ्रेश दिस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और फ्रेश कंजम्पशन चैनल। 2 एकड़ के लिए प्रोसेसिंग सेटअप नहीं लग सकता, लेकिन अगर वो 5000 एकड़ का कलेक्टिव प्रोडक्शन सेंटर है और उसके लिए प्रोसेसिंग सेटअप लग रहा है, तो 5000 एकड़ पे जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो डेफिनेटली अफोर्डेबल होगा। No part of the citrus fruit is wasted in this factory. Once the juice is pressed, the oils are extracted from the peels and what remains of the peels is used to make pectin. Pectin is used in food and pharmaceuticals and is always in high demand. तो अभी एज अ सह्याद्री वी आर इन पोजिशन दैट 100% फ्रूट वी कैन यूटिलाइजिंग एफिशिएंट मैनर। तो उसके लिए डेफिनेटली बहुत सारा R&D हो रहा है, बहुत सारे अभी इन्वेस्टमेंट उसमें बहुत सारा हुआ है, नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। आई थिंक दिस इज़ द फाउंडेशन फॉर नेक्स्ट 100 ईयर्स। और ये आई थिंक उसमें सिट्रस ओवरऑल इकोसिस्टम, सिट्रस फार्मिंग से लेके सिट्रस पूरी वैल्यूशन में डेफिनेटली स्टेबिलिटी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। Stats about Indian agri are always staggering. The largest producer of milk or mango or rice. But if you dig a little deeper, this is a story of squandered opportunities. In citrus too, we may be the 3rd largest producer, but nowhere on the global map. Our oranges simply do not match the global standards. The only way for farmers is to build the entire ecosystem by themselves with the power of collectivization. And all of that begins with dreaming big. For more such stories that help you understand India from farm to plate, subscribe to The Plate India.